Hi everyone, I am Abhisha Gulati. Welcome back to my channel. I will teach you Geography Class 12th, Chapter number 1 of World Book, Human Geography, Nature and Scope. This is a very interesting chapter and it is the root of the entire book, Human Geography. तो इस chapter में हम basically ये पढ़ेंगे कि what is human geography, what is the nature of human geography, क्या क्या definitions है human geography की, कैसे human geography tells us about the relationship of human beings and the environment. तो सबसे पहले what is geography? Now geography is an integrated, empirical and practical study. So geography is integrative in nature. Integrative matlab it integrates a lot of subjects. It is an interconnection of a lot of streams. For example, climate or study related to natural vegetation is linked to science and biology. For example, behavioral geography is linked to psychology. For example, population geography is linked to demography. So it is very integrative in nature. Secondly, geography is very empirical in nature, which means that geography takes into account quantitative values. Geography में बहुत सारा data study करते हैं, so that is empirical in nature. And geography is very practical. तो geography को हम practically use कर सकते हैं. It is more not a theory subject, more of a practical subject. क्योंकि जो जो हम geography में पढ़ते हैं, हम उसको practically apply कर सकते हैं, right? So इसको याद करने का एक mnemonic technique है, which is pie. So we can remember that geography is just like a pie to eat. P for practical, I for integrative, and E for empirical. So the reach of geography is very extensive because geography takes into account a lot of things. Geography takes into account science, social science, economics, psychology, anthropology, sociology, बहुत सारी चीजें. तो geography actually कोई भी event या कोई भी phenomena which can be studied through space and time can be studied geographically. Whatever event or phenomena that varies over space यानी location and time, वो सब हम geographically study कर सकते हैं. For example, societies. So society, how society is evolving over time, which is basically sociology, वो भी हम geographically study कर सकते हैं कि हड़प्पन civilization कैसे evolve हुई, या फिर इंडस वैली civilization कैसे evolve हुई, या फिर अभी metropolitan cities कैसे evolve हो रही है over time. तो ये भी geographically study कर सकते हैं. और अगर हमें study करना है कि कैसे एक रिवर पहले ग्लेशियर का फॉर्म लेती है और उसके बाद धीरे धीरे सी में चली जाती है, तो वो भी हम जोग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं. सो जोग्राफी के टू पार्ट्स है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जोग्राफी एज अ फील्ड हैज टू पार्ट्स. वन इज फिजिकल जोग्राफी and the second is human geography. So physical geography, it involves basically everything related to earth and nature. So earth and nature, for example, natural phenomena like landforms, natural vegetation, climate, hills, valleys, plateau, and everything related to nature is a part of physical geography, which we studied last year. So it is the study of all the life forms and all the natural environment that the earth has given us. Right? So it is mostly linked to science, which we studied totally in grade 11. We completely studied this in grade 11. And now we are studying human geography, which tells us what is the relationship of us human beings and the earth in which we live. So it actually explains us how human beings have been living on the earth, what is the impact of human activities on earth, and what is the impact of earth on human activities. Now, the core concern of geography as a discipline is to study the earth as a home of human beings, right? And it emphasizes on the relationship of both the earth and human beings and human societies. Now, another interesting topic is dualism in geography. Now, this is very easy to understand. Whenever we understand any field of study, we always look at it how
it has evolved, what does it mean, and there are always a lot of debates over it, right? ऐसे ही हम लोग एक नई फील्ड ऑफ स्टडी नहीं बना लेते ना, बहुत सारी डिबेट्स करते हैं जोग्राफर्स, थ्योरिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स, और उसके बाद वो बनाते हैं ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी. तो व्हेन ज्योग्राफी बिकेम अ फील्ड ऑफ स्टडी, तो बहुत सारी रिसर्च हुई. सो 3 debates came up, and 3 debates were कि आइदर ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए ज्योग्राफी में ओवर टाइम. द फर्स्ट डिबेट was that human geography should either be nomothetic or idiographic in nature, or idiographic in nature. Now what are these? Nomothetic का मतलब है लॉ मेकिंग. सो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल ने बोला कि ज्योग्राफी में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, लॉज ऑफ नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, लॉज ऑफ साइंस, लॉज ऑफ फिजिक्स. कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हैपेंस बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ऐसा एक लॉ है, तो उसी की वजह से अर्थक्वेक हैपेंस. तो ये बोला गया कि कुछ थ्योरीज पे बेस होनी चाहिए ये स्टडी. बट सेकेंड कोई और अदर ग्रुप ऑफ पीपल ने बोला कि ज्योग्राफी शुड बी इडोग्राफिक, व्हिच मींस दैट ज्योग्राफी शुड बी बेस्ड ऑन सम डिस्क्रिप्टिव आइडियाज. ज्योग्राफी में कोई थ्योरीज के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, जबकि वास्ट वैरायटी ऑफ आइडियाज के बेसिस पे होनी चाहिए. आइडियाज अबाउट how the earth works, how nature works, how mountains are formed, how river valleys are formed, what are the shapes river takes, or how human settlements evolved. तो बोला गया कि ईडोग्राफिक होना चाहिए. तो ये फर्स्ट डिबेट थी, राइट. द सेकेंड डिबेट इन ज्योग्राफी वाज कि ज्योग्राफिकल फिनोमेना को हम कैसे स्टडी करें. हाउ शुड द सब्जेक्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. हर सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हाउ शुड ज्योग्राफी बी ऑर्गेनाइज्ड. तो सेकेंड डिबेट में बोला गया कि ज्योग्राफी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड आइदर इन सिस्टमैटिक वे और इन अ रीजनल वे, और इन अ regional, either systematic or regional way. So what is systematic and regional? Let us understand. So systematic way means that, let's take an example. So systematic means that we take one phenomena, example, climate, right? We understand the climate of all around the globe. Climate of India, Africa, Asia, South America, North America, Antarctica, Africa, Madagascar, everywhere. Or we understand the natural vegetation of all around the world. This is systematic. कि systematically एक phenomena को study करना all over the world, which means one phenomena around the world, right? And जो regional approach थी, उसने बोला कि no, we should study one region, all phenomena. मतलब कि if we select one region, for example Delhi, so we will understand the climate of Delhi, we will understand the population of Delhi, we will understand and study the settlements of Delhi, the culture of Delhi, the occupational structure of Delhi, the landforms available in Delhi, the climate in Delhi, everything, natural vegetation of Delhi, everything of one region. So these were 2 debates. Either you should take a systematic approach or regional approach. The third debate was that how should geographical data be interpreted, right? तो जो डेटा है हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. जब भी हम कोई डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो उसको किसी बेसिस के ऊपर इंटरप्रेट करते हैं, राइट. हमारे पास कोई बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं. तो अगर किसी को ज्योग्राफिकल डेटा इंटरप्रेट करना है, राइट, तो उसके पास 2 ऑप्शंस है. या तो वो उसको थियोरेटिकली इंटरप्रेट करे, ये पहली डिबेट थी कि थियोरेटिकली इंटरप्रेट करो. दूसरी डिबेट थी कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनली इंटरप्रेट करो, व्हिच मींस कि आइदर इंटरप्रेटेड यूजिंग द थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज अवेलेबल है, और इंटरप्रेटेड
यूजिंग हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल वे। थ्योरीज यानी जो भी थ्योरीज बनी गई हैं अबाउट नेचर, अबाउट ज्योग्राफी, उसके बेसिस पे हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना कोई भी हमारे सामने आता है तो उसको इंटरप्रेट करें। और दूसरा हमारे पास डिबेट थी कि नहीं, हमारा जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो जितनी सारी इंस्टीट्यूशंस है जो हिस्टोरिकली ओवर टाइम हम लोग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी शुड इंटरप्रेट दैट डेटा। तो ये 3 डुअलिज्म्स थे। डुअलिज्म का मतलब होता है आइदर और डाइकोटमी, कि या तो ये या तो वो, ऐसी डिबेट्स थी, राइट। जैसे डुअल का मतलब होता है दो, ठीक है। नाउ मेटाफर्स ऑफ एनाटॉमी टू एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल फिनोमेना। ना ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि हम लोग कितनी बार ह्यूमंस से रिलेटेड मेटाफर्स यूज करते हैं टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमेनास एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के फिनोमेनास। फॉर एग्जाम्पल फेस ऑफ द अर्थ, कितने लोग बोलते हैं कि फेस ऑफ द अर्थ, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द isthmus, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, ये एक्चुअली हमें बताते हैं कि हाउ मेटाफर्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल फिनोमेना, टू डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल फिनोमेना। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मन ज्योग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन ज्योग्राफर्स ने स्टेट या नॉर्मल कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला। क्यों बोला? बिकॉज लॉट ऑफ एंटिटीज दे आर अबाइडिंग विद इन देम। जैसे एक स्टेट के अंदर कितना कुछ चीजें होती है, कंट्री में कितनी चीज होती है, पॉपुलेशन, ट्रीज, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एवरीथिंग। हर चीज एक विलेज के अंदर होती है, तो इट इज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे ज्योग्राफी से लिंक्ड है, कैसे फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक्ड है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली जो ज्योग्राफर्स है एंड थ्योरिस्ट है, उनने 3 मेन डेफिनेशंस दी है, and these are very easy definitions and most of them come as 3 mark questions, but हाँ एक बात है कि इनको verbatim we should learn it, but it's very easy to learn. So first definition is of Ratzel. So Friedrich Ratzel was a very famous geographer. He said that human geography is a synthetic study. Now what is a synthetic study? सिंथेटिक स्टडी मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी 2 डिफरेंट चीजों को कंबाइन करती है। ह्यूमन ज्योग्राफी 2 डिफरेंट चीजों का सिंथेसिस है। कौन सी 2 डिफरेंट चीजों का? ह्यूमन ज्योग्राफी सिंथेसिस है ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट या अर्थ का सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटीज की, कैसे ये दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है ये स्टडी करती है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन्होंने सिंथेसिस की बात करी, यानी इंटरलिंकेज या रिलेशनशिप। ओके, पहली बात तो ये। सेकेंड डेफिनेशन आती है एलन चर्चिल सैंपल की। तो शी सेड कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ डायनामिक रिलेशनशिप। डायनामिक मतलब चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरेस्टिंग मैन। तो उसने क्या बोला कि जो अर्थ है दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल एंड मैन इज ऑल्सो अनरेस्टिंग। नाउ हाउ इज अर्थ अनस्टेबल? अर्थ में कितने सारे फिनोमेना होते हैं, कितने सारे जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ये सारे होते हैं जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना भी होते हैं जैसे माउंटेन फॉर्मेशन, रिवर फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट। तो अर्थ भी अनस्टेबल है, अर्थ इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। अर्थ में भी बहुत सारी अप एंड डाउन्स हो रही है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है दैट आर ऑल्सो कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट। सो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, दिस इज व्हाट वी स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। And the third is the easiest definition. Third definition is of Paul Vidal de la Blache. He said that human geography is another conception. It is a concept which studies the interrelationship, which studies the synthesis of laws of nature and the human beings that inhabit nature. मतलब कैसे जो लॉज ऑफ नेचर है
जो अर्थ को नॉर्मल लॉज गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन ले लो, या जो भी लॉज है अर्थ को गवर्न करते हैं, वो लॉज का क्या रिलेशनशिप है विद द लिविंग बींग्स, विद ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है, या जो अर्थ की कॉम्पोजिशन है ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से वी आर एबल टू ब्रीथ टुडे, उसकी वजह से वी हैव ऑक्सीजन। या अनदर एग्जांपल कुड बी कि हमने कैसे इम्पैक्ट किया अर्थ की एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को। हमने एयर पोल्यूशन लेकर आए हैं, ह्यूमंस की वजह से एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से अर्थ का पूरा टेम्परेचर इम्पैक्ट हुआ है। तो कैसे अर्थ हमें इम्पैक्ट करती है और हम कैसे अर्थ को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? सो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ नेक्स्ट टॉपिक। तो ये भी बहुत इजी है, हम अभी तक बात करते आ रहे हैं इंट्रोडक्शन में भी, चैप्टर के हमने अभी भी बात यही करी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे रिलेशनशिप बताती है ऑफ द अर्थ and human beings, right? Human geography is basically the study of the relationship between earth and human beings. तो nature of human geography क्या है कि how the elements of physical environment, जो elements of physical environment है, how they combine with the elements of human geography, and how humans use the elements of physical environment for their own purposes. For example, elements of physical environment क्या है? Elements of physical environment है landform, soil, climate, water, natural vegetation, diverse flora and fauna, houses, villages, etc. ये सारे हो गए elements of human environment. तो ये soil को लेकर हमने उसका एक पूरा farm बना दिया। Natural vegetation से हमने अपनी अलग से एक गार्डनिंग कर ली, या हमने अपने नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर लिए। क्लाइमेट को कैसे हमने मॉडिफाई करा है, वाटर था अब हमने आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बना दी है। तो ह्यूमन एक्टिविटी, लैंडफॉर्म था अब हमने वहाँ पे विलेजेस, रोड्स, रेलवेज बना दिए। कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को ह्यूमंस ने इम्पैक्ट किया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज दैट while physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives. Now हमने ये सब तो बात कर ली कि कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग्स को बहुत इम्पैक्ट करती है और ह्यूमंस भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जो now we are living in the 21st century, right? And in this century I don't think anything is possible without technology today. Now COVID-19 की वजह से हम सब अपने घर पे रिस्ट्रिक्टेड एंड होपफुली सेफ है। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो प्रोबेबली सोशलाइज नहीं कर पाते हम, एजुकेशन में बहुत दिक्कत आती एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, राइट? तो कैसे हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, हम उस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अगर हम देखें कि हमने टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया है, तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो हमारी नॉलेज है ऑफ नेचर, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। अगर नेचर की नॉलेज नहीं होती है तो हम कभी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ही नहीं पाते। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता ही नहीं होता कि बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, हमें अगर पता ही नहीं होता कि हाउ कैन वी कंट्रोल हीट, हाउ कैन वी मेक आवर सराउंडिंग्स कूल, तो हम कभी एयर कंडीशनर्स या कूलर्स डेवलप नहीं कर पाते। अगर हमें पता ही नहीं होता कि कुछ कुछ खाना, कुछ कुछ फूड आइटम्स हमें एक लोअर टेम्परेचर पे कंज्यूम करने चाहिए, लाइक आइसक्रीम्स, तो हम कैसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें नॉलेज नहीं है नेचर की, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज कैसे डेवलप करेंगे जो हमें और फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि हमें पहले प्रॉब्लम चाहिए ताकि हम उसका सोल्यूशन बना सके। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि नेचर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है या क्या क्या लॉज है जो नेचर को गवर्न करते हैं, तो हम कैसे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो हमें फैसिलिटेट करे उन लॉज को कट ऑफ करने के लिए या उन लॉज से डील करने के लिए। तो ह्यूमन बींग्स interact with the physical environment with the help of technology.
We are interacting with our environment with the help of technology. It is not important कि हम क्या create कर रहे हैं, but it is important कि हम क्या tools और क्या techniques use करके वो चीज़ें create कर रहे हैं, because that has a very much impact on us and as well as the environment. तो टेक्नोलॉजी बेसिकली इंडिकेट करती है कि एक सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, सोसाइटी का कल्चर कितना डेवलप है ये बताती है एक सोसाइटी की टेक्नोलॉजी। अगर सोसाइटी बहुत टेक्निकली एडवांस्ड है तो बहुत कॉमन नोशन है कि वो सोसाइटी कल्चरली डेवलप्ड है। और अगर कोई सोसाइटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है इन नेचर, जैसे रूरल एरियाज में थोड़ी टेक्नोलॉजी कम होती है, तो वो सोसाइटीज़ को हम थोड़ा कल्चरली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग बोल सकते हैं। नाउ इस बुक में 3 एग्जांपल्स गिवन है, एंड दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ 3 और 5 मार्क क्वेश्चन which usually comes in board exams. First example is understanding of concepts of friction and heat helped us discover fire. तो अगर हमें फ्रिक्शन और हीट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम कभी फायर जैसा फिनोमिना डिस्कवर नहीं कर पाते, राइट? एंड इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन और हीट इतना इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स enabled us to conquer many diseases. This is a but obvious line in this era of COVID-19 कि अगर हमें कोविड-19 के बारे में रिसर्च नहीं करी होती, हमने नहीं समझा होता कि what kind of a virus it is, तो how would we have been able to develop a vaccine for it? या अभी जैसे हम और further research कर रहे हैं about the black fungus, white fungus and all other associated viruses and fungus, तभी जाके हम उसकी वैक्सीन या उसका क्योर बता सकते हैं। तो पहले जैसे इबोला वायरस आया था या बहुत पहले जैसे इंडिया में पोलियो आया था बहुत पहले, तो हमने इंडिया को पोलियो फ्री कैसे बनाया? पहले हमने स्टडी किया पोलियो पोलियो को, या हमने स्टडी किया कैसे डीएनए ह्यूमन चलता है, कैसे जेनेटिक्स चलती है, तब जाके हम वो डिजीजेस कॉन्कर कर पाए। थर्ड एग्जाम्पल इज कि लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स is important to understand how to develop fast planes. तो जब हमने एरोडायनामिक्स के लॉज पढ़े, जब हमने फिजिक्स पढ़ी, तब हमने समझ आया कि हाँ ओके, बिकॉज ऑफ दीज लॉज एन एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई। तो दीज लॉज ऑफ नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम टेक्नोलॉजी कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, इट मोस्टली कम्स फॉर 5 marks. Okay. Now, knowledge of nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human beings. So knowledge of nature is very very important to develop technology. अगर हमें nature नहीं पता है तो हम कोई technology develop नहीं कर पाएंगे। And जो technology है which helps us to loosen the foundations of the environment. I will give you an example. Imagine 2 years ago, if there is a COVID like situation, या if there was some किसी रीजन की वजह से आपका स्कूल बंद हो जाता है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी कि आप स्कूल की एजुकेशन को मिस आउट ना करो। हो सकता है किसी रीजन की वजह से प्रोबेबली स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो 5 days के लिए स्कूल ऑफ है। तो उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप 5 days अपनी एजुकेशन टेस्ट कर सको। लेकिन अब अगर आपका स्कूल 5 days के लिए या 10 days के लिए भी बंद हो जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो यू कैन परस्यू ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, राइट? तो टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस लूजन द बाउंडेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे पास जितनी बाउंडेशंस है, कुछ 50-40 years पहले अगर किसी के रिलेटिव्स यूएसए में रहते थे, तो ये एक फाउंडेशन है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दो प्लेसेस में, प्लेस ए और बी में। तो ये फाउंडेशन को टेक्नोलॉजी ने लूजन कर दिया या कम कर दिया। कैसे? बाय क्रिएटिंग सोशल मीडिया। हम नहीं कर रहे हैं वैसे तो ये सब, सोशल मीडिया या फिर वीडियो कॉलिंग सिस्टम,
या फिर एटलीस्ट ईमेल या फोन कॉल्स जो पहले नहीं होते थे. तो technology is very important because it helps us to loosen the shackles of the environment, but as every side of the coin is different and as every coin has two sides, हमें ये भी याद रखना है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर हम उसको मिसयूज करेंगे या हम उसका ओवर यूज करेंगे तो इट इज वेरी अनहेल्दी ऑल्सो, क्योंकि आजकल बहुत सारे साइबर बुलिंग वगैरह के केसेस आ रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो हमने समझ लिया, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो आई होप this video was fruitful for you, and I will continue this chapter in next part, and I think 2 or 3 parts में ये chapter finish हो जाएगा. Thank you for watching, and these notes I will link down in the description below, and also these notes are created using NCERT, and इन notes के बाहर I can guarantee कि कुछ नहीं आएगा. I have tried to cover each and every point in these notes, and I have also provided a question bank inside these notes. So I hope it will help you. Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.